Now today we will continue Matthew chapter 19. हम लोग मत्ती का 19 अध्याय में आगे बढ़ेंगे। But before that, I'll ask Pastor Viman if he can just pray for me and for the word. आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में और एक बार आते हैं, आपकी उपस्थिति को अंगीकार करते हैं पिता। हम मानते हैं आप हमारे बीच में मौजूद हैं और पिता हम आपसे सुनने आए हैं पिता। हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु, हम जबकि आने वाला कुछ समय बिताते हैं प्रभु, आपके दास के मुख से हमसे बात कर पिता। और यदि परमेश्वर उनको सामर्थ दे, जबकि अस्वस्थ है पिता, लेकिन आपके वचन को बांटने के लिए अनुग्रह दे और हमें हृदय दे ताकि हम सुनने वाले बने, समझने वाले बने। सारी बातों में प्रभु जी आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। We'll be looking at two major things in this chapter what Jesus is talking about. यहाँ पर हम दो अहम बातों को देखेंगे जो यीशु मसीह हमें सिखला रहे हैं। Of course, one of the things we have already talked about, that is marriage. एक बात हमने पहले ही किया शादी के बारे में, And a little bit we'll talk about children. हम लोग बच्चों के बारे में थोड़ा बात करेंगे। I don't know why right after marriage the children issue came. शादी के बाद ही बच्चों का बात आ जाता है। So I think this is just, I don't know, maybe intentionally the writer had put this one, but I don't know, but it's about children we will talk about. Anyways, हम लोग बच्चों के बारे में देखेंगे। And then we will talk about rich men. उसके बाद हम एक धनी व्यक्ति के बारे में देखेंगे। The big question, can rich men go to heaven? एक बड़ा सवाल, क्या एक धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जा सकता है? Because rich people can buy anything they want. क्योंकि धनी व्यक्ति तो कुछ भी खरीद सकता है। So that means they can certainly buy something and they can get to heaven. तो शायद कुछ ना कुछ खरीद के स्वर्ग राज्य में चला जाएगा। So we'll look at that, what the Bible says about that. हम देखेंगे कि बाइबल इस बारे में क्या बतलाती है। Now let's read this Matthew chapter 19 from verse 13 to 15. हम मत्ती का 19 13 से 15 पढ़ेंगे। And there it says, then children were brought to him that he might lay his hands on them and pray. तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे। But I don't know why the disciple they rebuked the people. लेकिन पता नहीं क्यों शिष्यों ने उसको उनको खराब बोला। But Jesus said, let the little children come to me. यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो। And do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven. और उन्हें मना न करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का तो है। And verse 15 says, and he laid his hands on them and went away. और वह उन पर हाथ रखा, वहां से चला गया। So here the issue is the children were brought to God, to Jesus Christ. और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोगों को बच्चों को यीशु मसीह के पास लाया गया था। And for some reason disciple they said, no, don't bring children here. और किसी कारण से शिष्यों ने कहा, अरे बच्चों को मत आने दो यहाँ पर। If there were children from Jharkhand, certainly you will not allow them to come near your guru, because their nose will be running and they will be not smelling good, and so maybe that could be one reason if they were from such kind of background. अगर झारखंड के बच्चे होंगे तो शायद बिल्कुल भी नहीं आने देंगे क्योंकि शायद महकेंगे, नाक गिर रहा होगा, तो शायद वैसा ही कुछ वजह रहा होगा कि शिष्यों ने कहा कि इनको मत आने दो परमेश्वर के पास। And if children from maybe some kind of slums, they will not keep quiet, they will keep talking, and they will make noise, and so better let the children not come to Jesus Christ, because he is going to teach us something. और अगर मान लीजिए कि वो कोई क्या बोलते हैं बस्ती के बच्चे अगर होंगे तो चिल्लाते रहेंगे, बकबक करते रहेंगे, तो ऐसे बच्चों को भी सोचकर शिष्यों ने कहा होगा कि इनको मत आने दो, वरना जो प्रभु सिखा रहे हैं कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। But Jesus said, let the little children come to me. लेकिन यीशु मसीह ने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। It's very, very important that we need to bring little children to God. ये बहुत अहम है कि छोटे बच्चों को प्रभु के पास लाएं हम। Now one generation is enough to change the course of history. एक पीढ़ी काफी है इतिहास को बदलने के लिए। Let's look at Judges chapter 2 verse 10 and 11. और जब देखते हैं जजेस का 2 अध्याय 10 और 11, there it says, then all the generation also were gathered in their fathers. और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। That means they died. मतलब मर चुके थे वे। This is talking about the generation of Joshua.
यहोशू के जो खानदान है उस पीढ़ी के बारे में बतलाया गया है। And there arose another generation, and after them, another generation after them, who did not know the Lord and the work that He has done for Israel. तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। Just the very next generation. जस्ट उसके बाद वाला पीढ़ी परमेश्वर को नहीं जानता। You know the previous generation, Moses, and then after the Joshua, how the Lord had done wonderful work among them. हम जानते हैं कि मूसा का जमाना में, उसके बाद का पीढ़ी यहोशू का जमाने में परमेश्वर ने कितने बड़े-बड़े कार्य उनके बीच किए They थे। were walking with the Lord. और वो प्रभु के पीछे चलते थे, प्रभु Maybe को मानते थे। in today's generation, they are the one who were leading the church. और शायद अगर हम आज के सदी में उदाहरण ले तो वो वैसे थे कि जो कलीसिया है या कलीसिया का जो काम है, इसको वही लोग चला रहे थे। Maybe you can think about Pastor Sushil, Pastor Biman, आप पास्टर सुशील के बारे में, मेरे बारे में सोच सकते हैं, समीत के बारे में सोच सकते हैं, एलेक्स के बारे में सोच This सकते is the generation I'm हैं। शायद talking यही about. पीढ़ी थी जो प्रभु के कार्य को चला रही थी And they knew the Lord, और वो प्रभु को जानते थे and they know how the Lord was gracious and merciful to them. और वो जानते थे कि परमेश्वर कितना दयालु और अनुग्रहकारी है उनके प्रति। But when they were gathered in the Lord, that means when they died. लेकिन जब वो लोग मृत हुए, उनका सदी, just to remind all of us, one day we all are going to die. फिर से स्मरण कराते, हम सब भी मरेंगे एक दिन। Pastor Sushil is going to die someday. पास्टर सुशील भी एक दिन छोड़ेंगे इस जगत को। So I need to prepare leader for next generation. तो मुझे भी जरूरी है कि मैं मेरे आने वाले प्रजन्म के लिए वहां से नेता खड़ा But करूं। I think this generation, they fail to teach their children from the Lord or the Word of God. ये पीढ़ी जो थी, ये पीढ़ी विफल हुई अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाने के लिए। And the very next generation, what happened? और उसके बाद वाली पीढ़ी के साथ क्या हुआ? They did not know the Lord. उनको पता भी नहीं था परमेश्वर कौन है। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं Jyotsna does not know the Lord. कि ज्योत्सना को परमेश्वर के बारे में Arpan कुछ, does not know the Lord. अर्पण प्रभु को नहीं जानता है। Sion, what is? सियोन Sion does not know the Lord. सियोन प्रभु को नहीं जानता है। Can you imagine this? क्या आप कल्पना कर But सकते this हैं? is what exactly happened. और यही हुआ था। And you may say it will never happen. आप बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। तो It can happen if you don't bring your children to the Lord. ऐसा ही होगा अगर आप अपने संतान को परमेश्वर के पास नहीं लाते। And then what happened in verse 11? और 11वें पद में क्या हुआ? And the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and served the Baals. इसीलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। That means they turned away from the Lord. इसका मतलब कि सच्चे परमेश्वर से वो विमुख हो गए। How it happened? कैसे हुआ? Because their parents, they failed to teach them the word of God. क्योंकि उनके माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाने में विफल हुए, असफल रहे। When do you think that children start learning? आपको क्या लगता है बच्चे सीखना शुरू करते हैं कब? How chota? कितने छोटे उम्र से सीखते हैं? Do you know that they start learning from mother's womb? आपको पता है कि माँ के गर्भ से वो सीखना शुरू करते हैं? I don't say this is what the science they say. विज्ञान भी ऐसे ही कहता है। And the scripture says that when you were in the mother's womb, He has chosen you. और वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बताता है कि जब आप अपने मातृ गर्भ में थे, परमेश्वर ने आपको चुना था। And therefore, we need to realize that the children start learning from mother's womb. तो ये स्मरण करने वाली बात है कि बच्चे अपनी माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू करते हैं। Those of you who are going to be mother in the future, when the children are in your womb, you have to start teaching them the word. और जब आप में से लोग जो भविष्य में माता बनेंगे, आपके गर्भ में जब परमेश्वर संतान को देगा, तब से आपको सिखाना है बच्चे को। How? कैसे? Read the word. आप वचन पढ़िए, Listen to the sermons. आप परमेश्वर का जो पैगाम होता है, संदेश होता है, उससे सुनिए।
especially of course that time we used to go to AG church. Our church was very close, so Nuthan used to go with oh no, we were staying far away, but still when she was carrying baby in her womb, we used to go to church. मुझे याद है कि जब नूतन भी गर्भवती थी तब हम लोग थोड़ा दूर में रहते थे, हालांकि लेकिन हम एजी में जाते थे उस समय, हम बच्चे को लेकर जाते थे. Because when he is in or she is in the womb, listening from the word of God. और जब वो पेट में है, गर्भ में है, वो तब भी वचन सुन पाती थी. Now children are not too small to learn about God. बच्चे इतने भी छोटे नहीं है कि प्रभु के बारे में नहीं समझ सकते. You need to bring them to Sunday school. आपको उन्हें परमेश्वर के भवन में लाना चाहिए, संडे स्कूल में लाना चाहिए. At what age you send them to school? आप कितनी उम्र में उनको स्कूल में भेजते हैं? 3.5. 3.5 साल. That's the age we started, I think, sending to school. So our children. हमने भी अपने बच्चों को 3.5 की उम्र में स्कूल में दाखिल किया. But many Christian parents, this is okay. Let them grow up. They will learn. बहुत से मसीह माँ बाप भी ऐसा बोलते हैं, अच्छा ठीक है, बड़े हो जाने दो ना, अपने आप सीख जाएंगे. Forget it. आप भूल जाइए. You just don't send your children to school and say that okay, when they grow up, they will learn. आप अपने बच्चों को स्कूल पर मत भेजिए और ऐसा बोलिए, हाँ बड़े होंगे तो अपने आप सीख जाएंगे. What will happen? क्या होगा? Okay, let's practice with one child who is willing to give a child for experiment. कौन अपना बच्चा को एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए खड़ा करेगा? I think the small baby we have is Pastor Avik's. पास्टर अभिक की बेटी सबसे Are छोटी you है. willing to give? No. बिल्कुल नहीं. So that means, are you saying that you will send your children to Sunday school, right? क्या आप बता रहे हैं आपके बच्चों को आप संडे स्कूल में भेजेंगे? Because it's from very early age they start learning, whether good or bad. क्योंकि अच्छा और बुरा वो उस छोटी उम्र से ही सीखना शुरू करते हैं. So parents, what you do, children watch. तो माँ बापों को बोलते हैं, आप क्या करते हैं, बच्चे आपको देखते हैं. When you pray, they know how to pray. आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, वो देखते हैं कि हमें प्रार्थना करना. When you read the word, they know that we need to read the word. अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वो सीखते हैं, मुझे भी बाइबल पढ़ना है. I praise God for Nuthan. From very early age, she started teaching the word to all our children. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि नूतन बहुत ही छोटी उम्र से हमारे बच्चों को प्रभु के वचन में बढ़ाती रही है. Of course, there's no guarantee they will walk in the ways of the Lord. ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बोल रहे हैं कोई गारंटी है कि वो लोग प्रभु के पीछे ही चलेंगे भविष्य में. But we have done our best. लेकिन हमने अपना प्रयास को संपूर्ण She रूप would से teach किया. them from small the children Bible story books. छोटे जो बच्चों की जो किताब होती है बाइबल की कहानियां. And then slowly when they grew up, we started teaching them from different kinds of material. और जैसे जैसे वो बढ़ने लगे, हम लोग अलग अलग प्रकार के जो मसीही जो मटेरियल्स होते हैं, जो लिटरेचर होते हैं, उससे हमने उनको सिखाना शुरू किया. And still we are teaching them. और आज भी हम लोग उन्हें सिखा रहे हैं. Children are born with sinful nature. बच्चे भी एक पापमय स्वभाव को लेकर ही जन्म लेते हैं. We need to train them in godly ways. और हमें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के रास्तों पर वो चले. Do you know that children are born with sinful nature? क्या आपको पता है कि बच्चे पाप की प्रवृत्ति को लेके ही जन्म लेते हैं? बोलते हैं वो आपका गला इसीलिए नहीं दबा रहे हैं क्योंकि वो बहुत कमजोर है. People say that they are not just holding your throat because they were small. And somebody said, if he had the power, he would grab his mother and demand his milk. अगर कोई किसी ने ऐसा कहा है कि अगर बच्चे में वो ताकत होता छोटे में, तो अपनी मम्मी को गला पकड़ के बोलता दूध दो मुझे भी. That's the nature of children. प्रवृत्ति ऐसी है. Now we need to train them in God's way. हमें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है प्रभु के राह पर चलने What के the लिए. scripture says, Proverbs chapter 22 verse 6. नीति वचन का 22:6 यहाँ कहता है, Train up a child in a way he should go, even when he is old, he will not depart from it. लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा. Let me take you back to your childhood. मैं आपको अपने बचपन पर लेकर जाता हूँ. What are some of the food you really enjoyed eating when you were young? आप जब छोटे थे कौन सा खाना बहुत पसंद करते थे? And I bet that's the food you still like it.
और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो खाना आप आज भी पसंद करते हैं। Wow. Some of those things in childhood, what you have done, still that is very fresh. कुछ बातें जो बचपन में आप करते थे आज भी एकदम एकदम साफ है आपके मन में। And sometimes I feel like, oh, I wish I go back to my childhood. और मैं सोचता हूँ कि काश मैं बच्चा हो जाता फिर से। Running around all in those ground in village and मैदान में दौड़ूं गांव में and killing birds and और पंछी को मारूं, hunting and all those शिकार things. I करूं। still remember, आज भी याद है। So whatever you learn in childhood is very, very fresh even at your old age. कई बार बहुत सारा चीज जो बचपन में हम सीखे या करते थे जब हमारा उम्र बढ़ जाता है तब भी हमें याद रहता है। But when we are grown old, we don't learn that way, or that doesn't register in that way in our लेकिन mind. जब हमारा उम्र हो जाता है तब हमारे सीखने की मानसिकता कम हो जाती है। This morning I was asking Nutan, what time is our service? Is 9 or 9:30? मैं आज नूतन को सुबह पूछ रहा था हमारा कलीसिया कितने बजे शुरू होता है, 9 बजे या 9:30 बजे? But some of the thing what I've done it in my childhood, I'll never forget. मैं समय भूल गया था लेकिन बचपन की कुछ घटनाएं जो मैं करता था वो अभी भी याद है। How many of you have small children? कितनों के छोटे बच्चे हैं? Yash, okay, Prakash, Samit, okay, yeah. And how many of you are going to have? Anyway, I know that. कितने लोग होने वाला है? Anyway, we'll just continue to pray for others, and when we have children, we need to teach them the word. लेकिन जब बच्चे हैं हमारे पास हमें प्रभु के वचन सिखाना है उन्हें। Okay, let's talk about next thing what Jesus said here. आइए हम दूसरी बात को सीखते हैं जो यीशु मसीह ने अगला कहा। From verse 23, this is 23 and 24. 23 और 24 पद। I don't want to go each and every verse, but a couple of verses we will just go through. हर पद को नहीं लेकिन कुछ खास पदों को हम सीखेंगे। Now listen this, what Jesus said about rich man. आइए हम सुनते हैं इसे। And Jesus said to his disciples, और तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, Truly I say to you, only with difficult will a rich person enter the kingdom of heaven. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। Again I tell you, listen very carefully. फिर तुमसे कहता हूँ, It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना ज्यादा सहज है। Have you seen camel? आपने ऊंट देखा है? And also I think you have seen needle. और आपने सुई भी देखा है? If not, go to one of the shop today and buy a needle and try to push a camel through that. और अगर नहीं देखा है तो दुकान में जाइए, एक सुई को खरीदिए और एक ऊंट को उसके अंदर से ढकेलिए। I think you better start with an ant. एक चींटी से ही शुरू कर लीजिए। Then you will find about how difficult it would be for a camel to go through the eye of a needle. आप जब चींटी को घुसाने का प्रयास करेंगे सुई से तो पता चल जाएगा कि ऊंट को घुसाना कितना कठिन होगा। Now that's the difficult what Jesus is talking about for a rich man to enter the kingdom of heaven. तो इस उदाहरण से यीशु मसीह बतलाना चाह रहे हैं कि कितना कठिन होगा एक धनवान के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। Is he saying that rich men will never enter? क्या यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं कि जो धनवान है वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे? No. He's not saying that. ऐसा नहीं कह रहे। He's saying it is with difficult they will enter the kingdom of heaven. लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि बहुत कठिनाई के साथ वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। Why do you think so? क्यों? क्या लगता है? Maybe there are so many reasons, but there are a couple of reasons we find here. शायद बहुत सारे वजह हैं लेकिन कुछ वजह यहाँ पर दिए गए हैं। Okay, number one. पहला, they depend on their own ability to go to heaven. एक धनवान जो है वो अपने सामर्थ्य अपने प्रयास पर ज्यादा निर्भर करता है स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। Now, rich people are capable to do whatever they want. जो अमीर होता है उसके पास बहुत क्षमता होती है, वो कुछ भी करना चाहता है। They are not dependent on anyone. वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भरशील नहीं है। Whatever they want, they can do it. जो चाहते हैं करते हैं। So they feel that even to go to heaven, they can do something. तो ऐसे ही सोचते हैं कि अगर मुझे स्वर्ग भी जाना है, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। Let's see verse 16 and 17. आइए 16 और 17 पद पढ़ें। And behold, a man came up to him, saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु,
मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? Now later you will find this man was a rich man. बाद में हम देखेंगे कि यह व्यक्ति जो प्रश्न कर रहा है वह एक अमीर या धनवान And था। verse 17 says, and he said to him, why do you ask me about what is good? There is only one who is good. That means he is talking about God. If you would enter life, keep the commandments. उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, मतलब स्वयं परमेश्वर। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। Recently I like what Samit was sharing with me. हाल ही में समित ने मुझसे एक बात बताई जो मुझे अच्छा लगा। Many times we go to people and talk about Jesus Christ and the grace of God. कई बार हम लोगों के पास यीशु मसीह के बारे में बतलाते हैं और उसके अनुग्रह के बारे में बतलाते हैं। And we tell them there is only one way to go to heaven, that is what? Believe in Lord Jesus Christ. और हम बतलाते हैं कि यीशु मसीह के जरिए एकमात्र मार्ग जो स्वर्ग राज्य में आपको लेके जाएगा। That is true, 100% true. ये 100% सही है। But you know what? Rich people, they don't see that way. लेकिन जो धनवान है वो उस नजर से नहीं देख पाता। Because they feel that I can do it. क्योंकि धनवान सोचता है मैं कर सकता हूँ। And that's what I think Jesus is saying, same thing here. और यीशु मसीह भी यही बात बतला रहे हैं। Oh, you want to go to heaven? तुम स्वर्ग राज्य जाना चाहते हो? Because he knew that if I talk about grace, he will never understand. क्योंकि यीशु को पता था मैं अगर अनुग्रह के बारे में एक धनवान से बोलूं तो उसको नहीं समझ में आएगा। If somebody has already scored 100 mark, will I talk about grace to him? अगर किसी को 100 नंबर मिल ही गए हैं तो क्या मैं उसको ग्रेस या अनुग्रह के बारे में बोलने से उसको समझ में आएगा? That grace mark जो ग्रेस में जो अंक मिलते हैं उसके बारे में उसको समझ में आएगा? No. नहीं। And that's what exactly Jesus said. He did not talk about grace. यीशु मसीह ने अनुग्रह के बारे में बात नहीं किया। Of course, later he is talking to his disciple about grace. बाद में उसने अपने शिष्यों से अनुग्रह के बारे में बात की। And then to him what he said, okay, do the commandment. और उसने कहा उस धनवान से, ठीक है जाओ सारी आज्ञाओं को मानो। He said to him, which one? Which command? उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा है? And Jesus said, you shall not murder. और यीशु ने कहा यह कि हत्या ना करना, you shall not commit adultery, व्यभिचार ना you करना, shall not steal, चोरी ना करना, you shall not bear false witnesses, झूठी गवाही ना देना, honor your father and mother, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, you shall love your neighbor as yourself, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। Verse 20, the young man said to him, और 20वां पद, उस जवान ने उससे कहा, all this I have kept, what do I still lack? इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? And in another place you will see that this young man is saying that this thing I have done from my childhood. और यह धनवान जो जवान है वो बोलता है, अरे ये सारी बातें आज्ञाएं तो मैंने बचपन से मानी है। Who? कौन? वाव। अच्छा, look at this guy. देखिए इस जवान को। He has done all this commandment, he has fulfilled, he has never committed any sin. किसी पाप को उसने नहीं किया बचपन से। Then maybe Jesus said, okay, this is the right person to recruit him for full-time work. तो यीशु मसीह ने सोचा होगा कि इसको ये एकदम सही आदमी है इसको काम पे लेने के लिए। And then this is what he told him. और यीशु ने उसको ऐसा कहा। Then Jesus said to him, यीशु ने उनसे कहा, if you would be perfect, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, because he is like he's acting like he is perfect. क्योंकि वो अभिनय कर रहा है कि वो प्रदर्शन कर रहा है कि हाँ मैंने तो सब कुछ किया है। Now Jesus knew that he was not perfect. यीशु मसीह जानता था कि वो सिद्ध व्यक्ति नहीं है। Can you bring me one person who has never committed a sin? क्या आप मेरे पास एक व्यक्ति ला सकते हो जिसने कभी पाप नहीं किया हो? There is only one person who has never committed sin is Lord Jesus Christ. सिर्फ एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व परमेश्वर यीशु मसीह जिसने गुनाह नहीं किया। Because he was not born with sinful nature. क्योंकि वो स्वयं एक पापमय प्रवृत्ति से जो आम लोगों का होता है उससे जन्म नहीं लिया। But rest of the people, all through the generation, we all are sinful. We are born with sinful nature. लेकिन सारी पीढ़ियों से, सदियों से बाकी सारी मानव जाति पापमय स्वभाव को लेकर ही पैदा हुई है। You may have not murdered.
आपने शायद किसी का कत्ल ना किया हो, but how about telling lie? लेकिन झूठ बोलने के बारे में क्या ख्याल है? How about your bad thinking? क्या हमारा बुरा सोच? And then Jesus said, oh, well, if you want to become perfect, go sell all your possession and give it to poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. और तब यीशु ने कहा, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। That's why I said, Jesus wanted to recruit him as full-time worker. यीशु मसीह इसीलिए उसको अपना कर्मचारी बनाना चाहते थे। Because he said, wow, what a perfect man. This is the kind of people who can serve me with all their heart. कितना सिद्ध व्यक्ति है, यही शायद मेरे को सेवा कर सकता है। But verse 22, 22वां पद, when the young man heard this, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, he went away sorrowful, for he had great possessions. क्योंकि वह बहुत धनी था। They love money more than God. वो अपने पैसे को परमेश्वर से बहुत अधिक प्रेम। Am I talking about all the rich men? क्या मैं सारे धनी लोगों के बारे में बोल रहा हूँ? No. नहीं। Is God saying becoming rich is a sin? क्या परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि धनी बनना पाप है? No, बिल्कुल नहीं। He himself is rich. परमेश्वर स्वयं बहुत बड़ा धनी है, because he owns everything. क्योंकि सारा कायनात उसका है। He is rich God. वो परमेश्वर धनी परमेश्वर है। And that's why the scripture says, being rich, he became poor. और वचन ऐसा कहता है कि वो धनी था लेकिन हमारे लिए दरिद्र बना। So is God is talking about you need to become poor? तो परमेश्वर क्या ऐसा बोल रहे हैं कि आप भी दरिद्र बन जाइए? No. नहीं, That's not the issue. यहाँ पे मसला वो नहीं है। That's not the case. यहाँ पे मामला वो नहीं है। What he is saying is, do you love God more than your money? लेकिन सवाल यह है, क्या तुम परमेश्वर को अपने पैसे से बढ़कर प्रेम करते हो? And it's not only about money. और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। It's about your position. ये आपका जो संपत्ति है, Position. आपका जो ओहदा है, About your relatives. आपके जो परिवार परिजन के लोग हैं। I know some of you mother, you love your children. मैं जानता हूं कि आप में से कई माएं हैं जो अपने संतान को बहुत प्रेम करती हैं। But don't love your children more than God. लेकिन अपने परमेश्वर से अधिक अपने संतान से प्रेम मत कीजिए। Is there anything in the world today in your life which you love more than God? आपके जीवन में ऐसी कोई बात है आज जो प्रभु से आपके प्रेम से, हमारे परमेश्वर के प्रेम जो है आपका है उससे ज्यादा है? Your fiancé? शायद आपका मंगेतर? I don't know what. क्या मुझे नहीं मालूम। But I think what he's saying that the rich people, they love money more than God. धनी व्यक्ति परमेश्वर से बढ़कर अपने धन से प्रेम करता है। Once again, I want to repeat, not all the rich people. मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, हर धनी नहीं। Because recently we had a testimony that Pastor Biman met this guy. He's damn rich. He has got I don't know how many sheep, but he loves the Lord. Okay. World's largest fish business he has. विश्व का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का व्यवसाय है उनका। But he loved the Lord. लेकिन वो प्रभु से प्रेम करता है। So that's the case. This man, he did not love the Lord. He loved his possession more than God. तो हम देखते हैं कि यह व्यक्ति अपनी संपत्ति को ईश्वर से ज्यादा प्रेम करता था। And Jesus in another place in Luke chapter 16 verse 13 is saying, और लूका का 16 का 13 में यीशु मसीह ने कहा, no servant can serve two masters. कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। For either he will hate the one and love the other. क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। Or he will be devoted to the one and despise the other. या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। Make note of this. He said, you cannot serve God and money. याद रखें हम इस बात को कि आप परमेश्वर और पैसा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। If you are running after money, you will never run after God. अगर आप पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं तो आप ईश्वर के पीछे कभी नहीं But you run after God, अगर आप परमेश्वर के प्रति दौड़ रहे हैं, money will run after you. पैसा आपके पीछे दौड़ सकता है। Hallelujah. हालेलुया। If you run after God, अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे, money will run after you. पैसा आपके पीछे आएगा। Somebody said money is like a shadow.
किसी ने कहा है कि धन एक परछाई के समान है। When sun is rising and when you stand, you will see your shadow. जब सूरज उगता है और आप अपना जो छाया है उसको देख पाते हैं, And especially when we were little children, we used to, see our shadow. Sometimes you will make your hands move, and you will really enjoy the movement of your shadow. आप जब बच्चे थे तब अपना परछाई को देखते थे, हाथ वाथ घुमाएंगे, अच्छा लगता था देखने में। And especially when we grew up, we did not grow up watching TV or any kind of thing. So that was more of like our TV, like watching it. वो जब बड़े हुए तब टेलीविजन ये सब कुछ नहीं था, लेकिन यही खेल था, यही टीवी था, परछाई को देखना, हाथ वाथ घुमाना। Now you imagine if I am running to catch my shadow. कल्पना करिए कि मैं अगर अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ूं, will I be able to catch it? क्या मैं पकड़ लूंगा उसे? Because the more I run, the more the shadow will run. मैं जितना उसके पीछे दौड़ूंगा मेरा परछाई भी उतना दौड़ेगा। But run towards the sun. लेकिन आप सूरज के पीछे दौड़िए, सूरज की तरफ दौड़िए, Your shadow will run after you. आपका परछाई आपके पीछे दौड़ेगा। That's what I'm talking about. यही मैं बतलाना चाहता हूँ। Sun, our Lord Jesus Christ. वो सूरज हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु। Run after him. आप उसकी प्रति दौड़िए। Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के खोजी बनिए और सारी बातें दी जाएंगी। Amen. आमीन। All right. 1 Timothy chapter 6 verse 10. पहला तिमोथी का 6 का 10। There it says, "For the love of money is the root of all kinds of evil." क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। Now once again I want to just re-emphasize, not money. It said love of money. हमने यह नहीं बोला कि पैसा, लेकिन पैसे के प्रति प्रेम। We all need money. हम सबको पैसे की जरूरत है। Is anybody here who does not need money? कोई है जिसको पैसा नहीं चाहिए? Oh, yes. Please give me all your money. ठीक है, सारा पैसा मुझे दे देना। No, I think we all need money. हम सबको रुपए पैसे की जरूरत है। Money is not bad. पैसा अपने आप में बुरा The नहीं, love of money is bad. लेकिन पैसे के प्रति प्रेम बुरा है। Why? Because the love of money is the root of all kinds of evil. क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। Today you see human trafficking. आज हम देखते हैं कि जो मनुष्यों का तस्करी हो रहा है। There are so many doctors, they will sell your kidneys. कई सारे डॉक्टर है जो आपकी किडनी को बेच देते हैं। Be careful where you are going to, which doctor you are going to. किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपना चिकित्सा कराने, देखिएगा। There are so many other things people are doing today. The children, they are taken, they are made blind and asked to. बच्चों को अगवा किया जाता है, उसको अंधा बना के भीख मंगवाया जाता है। Oh my goodness, terrible things in the world. कई बुरी बातें हो रही हैं। Why? क्यों? Love of money. पैसे के प्रति अधिक Just प्रेम। they need money. बहुत पैसा चाहिए। And then further it says, "It is through the craving of the same have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs." और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। Here it's talking about there are many believers even they have wandered away. यहाँ पे कई सारे विश्वासियों के बारे में बतलाया जा रहा है जो भटक चुके हैं। They were running behind. They were running after God. वो लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। They were walking with Jesus. यीशु के पीछे चल रहे थे। But Satan started waving something. और शैतान कुछ दिखाना शुरू किया। Hey, what will you get with your Jesus? अरे यीशु के पीछे जाके क्या होगा? देखो इधर। Look at here. I have everything in the world. सारा चीज तो मेरे पास है। All kind of pleasure. सारा मजा मेरे पास है। Just take a little bit and you will be in the top of the heaven. थोड़ा सा ले लो, उसके बाद तो स्वर्ग के ऊपर चले जाओगे तुम। And you what? Without money, what will you do? पैसे के बिना क्या करेगा तुम? Take this money. पैसा ले लो। Oh, small lie you have to tell. अरे छोटा सा तो झूठ बोलना है। And then many people they wander away. उसके बाद बहुत जन विश्वासी भी भटक गए। Money is good servant, but a bad master. धन एक अच्छा सेवक है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक है। You have money? आपके पास रुपया है? Use money as servant. धन को इस्तेमाल कीजिए एक सेवक के जैसा। Don't make your money your master. आपका धन आपका मालिक ना बनने पाए। Your master is Lord Jesus Christ. आपका मालिक प्रभु यीशु मसीह है। Hallelujah.
Hallelujah. Who is your master? आपका मालिक कौन है? Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु। What is money? पैसा क्या है? My servant. वो मेरा सेवक है। Hallelujah. Hallelujah. If Navjeevan Church does this, I believe that the Lord will bless us. अगर हमारा कलीसिया इस मनोवृत्ति को रखेगा, मैं मानता हूँ प्रभु हमें आशीष Quickly, करेगा। they get involved in all kinds of ungodly things in order to get rich. और वो हर एक प्रकार के जो अनैतिक बातों में लिप्त हो जाते हैं अपने आप को बड़ा आदमी बनाने के लिए। James chapter 5 verse 4 to 6 it says, याकूब का 5:4 से 6 ऐसा कहता है, Behold the wages of the laborers who mowed your field, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvest have reached to the ear of the Lord of hosts. देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई। Okay, of course, that time, you know, everybody, what they used to do was maybe raising cattle or maybe harvesting and all those things. ये उस जमाने के बारे में जब अधिकतर लोग पशुपालन या खेती बाड़ी करते थे। I'm sure that Microsoft was not there. और जरूर माइक्रोसॉफ्ट उस जमाने में नहीं था। There was no IT company. कोई आईटी कंपनी भी नहीं था। So there was only company was maybe food production. शायद खाद्य उत्पादन यही रहा होगा। And that's why Jesus gave example. You know, these people, they mowed your field and you did not give them full wages. और यीशु मसीह यहाँ पे बतला रहे हैं कि देखो ये सारे खेतीहर जो है वो लोग चिल्ला रहे हैं कि तुम्हारे खेतों को उन्होंने जोता लेकिन तुमने उनके पैसे को मार दिया। And that's why verse 5 it says that you have lived on the earth with luxury and in self-indulgence. तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। Verse 6 it says you have fattened your heart in the day in a day of slaughter. तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। You have condemned and murdered righteous person, he does not resist you. तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सम्मान नहीं करता। Some of these people, in order to get rich, they will trample others. This is what he's talking about. और इस प्रकार के कुछ व्यक्ति जो खुद बड़ा होने के लिए दूसरों को दबाते हैं। And I don't know if this kind of people whether they will ever repent and come to God. मुझे नहीं मालूम कि ऐसे लोग कभी भी मन फिराएंगे और प्रभु के पास आएंगे कि नहीं। Then this is what disciples said after hearing all of these things, especially that camel thing. And verse 25 and 26, this is what disciples said. और शिष्यों ने ये सारी बातें सुनने के बाद इस बात को कहा, खास करके जो ऊंट का सुई से निकलने के बारे में। When the disciples heard this, they were greatly astonished. यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, saying, who then can be saved? फिर किसका उद्धार हो सकता है? Mark this, verse 26. But Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकेगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा यह संभव है। Salvation is the act of God. उद्धार परमेश्वर का किया गया Man काम है। cannot do anything to save himself from मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, नियम नीति और व्यवस्था को Let's मानकर। watch this video. आइए इस छोटे से वीडियो को देखते हैं। आइए हम एक अच्छे इंसान से मिलते हैं। आप सोचते हैं कि आप अच्छे हैं, ये इंसान सच में अच्छा है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ अच्छे करने की। ये इतने अच्छे हैं कि अगर अच्छे लोगों की लाइन बस पे लगे तो वो सबसे पहले आएंगे। अरे छोड़ो यार। तो श्रीमान बताइए, क्या आपने 10 आज्ञाओं का पालन किया है? हाँ, काफी हद तक। क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर हम इन 10 आज्ञाओं को देखें तो? देखते हैं आप सही में कितने अच्छे हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये रहा पहला आज्ञा,
आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो श्रीमान, क्या कभी आपने झूठ बोला है? हाँ, आपके जमाने में कौन झूठ नहीं बोलता है? जो झूठ बोलते हैं उसे आप क्या कहते हैं? झूठा। ठीक है, एक और आज्ञा देखते हैं। आपको चोरी नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी कुछ चुराया है? नहीं। अभी आप ही ने कहा कि आप झूठे हैं। हाँ, ठीक है, मैंने कुछ मिठाइयाँ चुराई थी जब मैं छोटा था। और जो चोरी करता है उसे आप क्या कहते हैं? चोर। और एक आज्ञा देखते हैं। आपको व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत आसान है, मैं तो किसी लड़की को नहीं देखता। ओए तेरी। यीशु ने कहा कि आप अगर वासना के साथ किसी औरत को देखते हैं तो आपने पहले से ही अपने दिल में उसके साथ व्यभिचार कर दिया है। हाँ, ठीक है। यीशु ने कहा कि आप अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लें। क्या आपने कभी प्रभु का नाम अभिशाप देने के लिए इस्तेमाल किया है? मेरे यही श्रीमान, इसे निंदा बोला जाता है। आपको जीवन, सांस और वो सब कुछ जो आपके पास है प्रभु ने दिया है, और आपने उनके नाम को मिट्टी में मिला दिया। तो आपने ये स्वीकार किया कि आप एक झूठा, एक चोर, एक निंदाकारी और एक व्यभिचारी हैं, और ये 10 आज्ञाओं में से सिर्फ 4 हैं। ठीक है, मैं सही नहीं हूँ। ठीक है, मगर वास्तव में ये उससे भी बुरा है। सोचिए, यदि आपके दिमाग में एक चिप डाल दिया जाए जिससे आपके सभी व्यक्तिगत विचार रिकॉर्ड होगा 1 हफ्ते के लिए, और फिर एक विशाल फिल्म के पर्दे पर उन विचारों को आपके दोस्तों और परिवार को दिखाया जाए, वो तो शर्मनाक होगा। मैं जानता हूँ, बाइबल कहता है कि प्रभु सब कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि आपके दिल के गुप्त विचार भी। ठीक है, पर कुछ लोगों की तुलना में मैं संत हूँ। सही है, लेकिन मापदंड प्रभु का कानून है, अन्य लोग नहीं। यदि आप एक दिन में 5 पाप करते हैं तो एक वर्ष में 1825 पाप कर चुके होंगे, और आप 70 साल जीवित रहते हैं तो आपने 1,27,000 बार प्रभु का आज्ञा तोड़ा है। और आपको न्याय के दिन हर एक पापों का जवाब देना होगा। और बाइबल का कहना है कि हम में से प्रत्येक को अपने पापों का हिसाब देना होगा। लेकिन प्रभु मुझे माफ कर देंगे, सही है ना? चलो इसे अदालत में कोशिश करके देखते हैं। अरे देखो, मैं जानता हूँ कि मैं कानून तोड़ता रहता हूँ। क्या तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते? केवल एक भ्रष्ट न्याय करने वाला ही ये कर सकता है। एक अच्छे न्यायाधीश ये कहेंगे, न्याय की मांग है कि आप अपने अपराध के लिए भुगतान करेंगे। प्रभु एक भ्रष्ट जज नहीं है, वो एक पवित्र और धार्मिक जज है। वो पाप से नफरत करते हैं। यीशु ने चेतावनी दी है कि फैसले के दिन में जो भी प्रभु के खिलाफ पाप करेगा वो उचित रूप में एक भयानक नरक नामक जगह में पाए जाएंगे। उसे अनंत काल तक कोई भी नहीं बचा सकता है। तो फिर कोई भी कैसे स्वर्ग पे जा सकता है? सिर्फ एक ही रास्ता है। प्रभु ने जगत से इतना प्रेम किया है कि उन्होंने अपने एक लौते पुत्र यीशु को भेजा एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए। वो कभी भी पाप नहीं किया, एक बार भी नहीं। तब यीशु ने अपने आप को बलिदान किया हम सब दोषियों और पापियों के लिए। उसे कोड़े लगाया गया, मारा गया, और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया मारने के लिए, ताकि न्याय हो सके और पापियों को मुक्ति मिले। यीशु मृत्यु में से जी उठकर मौत को हराया। आप अनंत जीवन अर्जित नहीं कर सकते। ये यीशु का तोहफा है हर एक के लिए जो खुद को नम्र करके यीशु के पास आता है। वो आपको माफ कर देंगे और आपके पापों को धो देंगे और आपको एक नया दिल देंगे, नई इच्छाओं के साथ। बाइबल कहता है, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। तो खुद के लिए जीना आनंद कीजिए, अपने पापों से मुड़ जाइए और यीशु के पास आइए। फिर अपने बाइबल पढ़िए और उसका पालन कीजिए। एक अच्छा चर्च को ढूंढिए जो आपको बढ़ने में सहायता करे। फिर पूरे हृदय के साथ अन्य लोगों को ये अच्छी खबर बताएं। How did you like it? कैसा लगा आप लोगों को?
Okay, let's give big clap for ILT. They are the one who created ILT के it. लिए एक ताली मार दें, उन्होंने इसके पीछे काम करके बनाया है। I really like this video. बहुत अच्छा वीडियो है And how relevant it is for this young man today. और ये कितना ही मेल खाता है एक नौजवान से He जिसके बारे wanted में to go to heaven through his own effort. यह नौजवान धनी भी स्वर्ग राज्य अपने बलबूते पे जाना चाहता था। Man cannot save himself by observing the law. Galatians chapter 2 verse 16. गलातियों का 2:16 कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता। Yet knowing that man is not justified by work of the law, but through faith in Jesus Christ. तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। Even we believed on Jesus Christ, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। Because by the works of the law no one shall, or law shall no, because by the works of the law shall no flesh be justified. इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। So there is only one way, तो एक ही रास्ता है हमारे लिए, Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। In summary, और हम सारांश में कह सकते हैं, number 1, पहली बात, bring your children to God when they are young. अपने संतानों को, बच्चों को जब वो छोटे हैं आप प्रभु के पास उन्हें लाएं। Keep God in first priority. अपने जीवन में सबसे गुरुत्वपूर्ण ओहदा या जगह परमेश्वर को दीजिए। Trust in Jesus for your salvation. यीशु मसीह पर विश्वास लाइए अपने उद्धार के लिए। There's only one person who can save the world. एक ही जन है जो इस विश्व को बचा सकता है। And today the whole world, they need Jesus. और पूरा पृथ्वी आज प्रभु का प्रयोजन है। It is you and I need to go and tell people. और हमें आवश्यकता है हम उनको ये बतलाएं। Now Peter was given a key for the kingdom. और पतरस को एक चाबी दी गई थी परमेश्वर के राज्य के लिए। Now incidentally today a very interesting incident took place. आज एक बहुत ही दिलचस्प बात घटा। The key to our that cupboard, the only person had was Subal. और हमारा जो वहाँ पे कंट्रोल यूनिट है साउंड सिस्टम का, उसका उस बक्से का चाबी सिर्फ शुभम के पास था। And when he came here, he was just looking for that key. It's not there. और जब वो यहाँ आया तो चाबी ढूंढ रहा था, चाबी नहीं था। He had to rush back and bring the key. उसे वापस घर जाना पड़ा, वो चाबी लेके आना पड़ा। Now Subham, only you have the key. तो आपके पास चाबी है If सिर्फ। you don't come with key, आप अगर चाबी लेके नहीं आओगे everything will be upset. तो सारा चीज खत्म। Now you and I, we are given key to the kingdom. और आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य की उस कुंजी या चाबी को दी गई है। Now if you open, people will enter. अगर आप खोलेंगे लोग प्रभु पे आएंगे। If you don't open, they will not enter. आप बंद रखेंगे लोग नहीं आएंगे। In another word, if you tell people about Christ, अगर आप प्रभु के बारे में लोगों को बोलेंगे they will know. तो वो जानेंगे। If you don't tell them, अगर आप नहीं बतलाएंगे they will go to the eternal death. तो एक अनंतकालीन दंड की तरफ जाएंगे। What a great privilege we have that we need to tell people about God. कितना अनोखा एक विशेष अधिकार हमें मिला है हम- कि लोगों के बारे में प्रभु को बताएं। How many of you will say that at least I will share with 2 people about Jesus every कितने day? लोग बोलते हैं कि मैं 2 जन को प्रभु के बारे में जरूर बोलूंगा, At least try. मैं कोशिश करूंगा। Can I see your hand? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता Maybe हूं? giving 2 people a tract. मैं 2 जन को सिर्फ गॉस्पेल ट्रैक ही दे सकूं एटलीस्ट। Maybe share 4 laws with them. हो सकता है 4 आत्मिक नियम जो है Maybe share मैं my बताऊं। testimony with शायद मैं them. अपनी गवाही को दे I will सकूं, do something. कुछ तो करूंगा। Let's make this commitment this आइए हम this इस morning. समर्पण को ले इस समय। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for each one of our life. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हम सबके जीवन के लिए। Thank you, Lord, for giving us the saving knowledge. प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके उस बचाव के कार्य को आपने दिया है। But Lord, there are so many people in this city of Calcutta, those who do not know you. प्रभु कितने जन इस कलकत्ता शहर में जो आपको नहीं जानते हैं। Lord, I pray that you will send each one of us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम सभी को आप भेजें। Lord, give us courage.
प्रभु हमें साहस दे। Lord, give us the anointing of your Spirit. आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन। Lord, I pray that let all of us be your testimony to the world today. हम सब आपकी गवाही इस जगत के लिए बनने पाए। Help us to be a witness for Christ. हमें यीशु मसीह का गवाह बनने दे। Thank you. We love you. धन्यवाद, आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। We call just Alex to have a closing song and just surrender our lives.